friends, welcome to my channel, and let's continue with national income. This is part 3 video of national income, and in the previous videos I have explained you all the different concepts and formulas, and in this video some numericals and other concepts will be studying. And let's start with GDP deflator. Now, what is this GDP deflator? Basically, it is a ratio of nominal GDP to real GDP, and it is used to calculate the real change in the volume of production. तो जब वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन जब चेंज होता है तो वो कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग बाय यूजिंग जीडीपी डिफ्लेटर, एंड ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है टू कैलकुलेट जीडीपी डिफ्लेटर. नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100. सो एक और कॉन्सेप्ट की तरफ आगे चलते हैं, दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं CPI, एंड दिस इज द इंडेक्स ऑफ प्राइसेस of the given commodities which are bought by a consumer, and basically it is expressed as a percentage, and the formula is current year price divided by base year price into 100. ये हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स में भी किया है, तो ये फॉर्मूला याद रखना है जिसके ऊपर आपको मिल सकते हैं न्यूमेरिकल्स. एंड एक न्यूमेरिकल का एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, एंड दिस इज ऑल्सो देयर इन योर NCERT बुक. नाउ here the question is, a consumer buys 90 kg of rice at the rate of rupees 10 per kg and 5 pieces of cloth at the rate of 100 rupees per piece in the year 2000. तो 2000 में इन्होंने दो प्रोडक्ट परचेज किए थे, राइस और क्लोथ, एंड यहाँ पे टोटल जो स्पेंडिंग है कंज्यूमर की दैट इज़ 90 into 10. यहाँ पे 90 kg राइस एट द रेट ऑफ रुपीज़ 10, तो यू विल गेट दिस रुपीज़ 900. एंड क्लोथ्स के बारे में बात करते हैं तो 5 पीसेस क्लोथ एट द रेट ऑफ 100 रुपीज़, सो दैट बिकम्स 500. सो द टोटल समेशन ऑफ 900 प्लस 500 विल गिव यू रुपीज़ 1400. सो दिस इज द एक्सपेंडिचर मेड बाय द कस्टमर ऑन these two products in the year 2000. Now suppose the price of rice increases to rupees 15 and clothes by 120 in the year 2005. तो यहाँ पे आपको निकालना है कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर कितना चेंज हुआ है. आई मीन सेम क्वांटिटी रखनी है आपको, तो 90 kg इंटू 15, सो दैट विल गिव यू 1350 रुपीज़. एंड उन्होंने 5 पीस लिया था क्लोथ्स का एट द रेट ऑफ 120 रुपीज़, तो ये हो गए आपके 600 रुपीज़. सो व्हेन यू विल ऐड दिस टू यू गेट द टोटल एक्सपेंडिचर 1950. Okay friends, why GDP is not taken as truly the welfare of the people? So the first reason is unequal distribution of GDP in the country. If the GDP is rising, so the welfare may not rise in the same proportion or rate. This is because the GDP may be concentrated in the hands of few individuals, and it is not equally distributed among all the people of the country. So this is one case. The other is non-monetary exchanges. Many activities in an economy are not evaluated in terms of money. Now for example, the domestic services of women, when we do gardening in our houses, teaching our own children, so all these services are not counted when we calculate national income. So we just can't take that higher GDP means higher welfare. Okay, one more reason, that is externalities. Externalities refer to the benefits or harms a firm or an individual causes to another for which they are not paid or penalized. So this is the complete definition of externalities, and these do not have any market where we can buy and sell externalities. Now for example, this example is already given in your NCERT book also. An oil refinery which refines crude petroleum and sells in the market, and the value added by the refinery will be counted as a part of GDP in the economy, but
Due to this factory, this production, this refinery, the nearby rivers are getting polluted. So this may cause harm to the people nearby and also the water animals. तो यहाँ पे जीडीपी तो इंक्रीज़ हो रहा है ऑयल रिफाइनरी से, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे कुछ सोशल इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं, तो इन चीज़ों को हम लोग काउंट नहीं करते वाइल कैलकुलेटिंग जीडीपी। तो ये जो पॉल्यूशन वाली चीज़ है, तो मतलब ये वेलफेयर की तरफ नहीं लेके जाती, एंड दैट्स वाई जीडीपी इज़ नॉट ए ट्रू इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर। ओके, आगे चलते हैं। एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस। जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट आर द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड व्हाट आर द रेम्यूनरेशन टू ईच ऑफ दिस कॉल्ड। सिंपल है, बहुत बार मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई शुड the aggregate final expenditure of an economy be equal to aggregate factor payments। एक इकोनॉमी में जो मतलब टोटल एक्सपेंडिचर होता है, दैट मस्ट बी इक्वल टू टोटल फैक्टर पेमेंट। व्हाई इट इज़ सो? इसका आंसर देख लेते हैं। द एग्रीगेट फाइनल एक्सपेंडिचर ऑफ एन इकोनॉमी इज द सम ऑफ ऑल द स्पेंडिंग्स ऑफ एन इकोनॉमी, वेर एज एग्रीगेट फैक्टर पेमेंट्स refer to the wages, interest, rents, profits paid to the factor of production. And this income earned is either spent on goods and services or save. I mean the people या तो खर्चा करेंगे या फिर उसको सेव करेंगे। तो therefore the aggregate final expenditure should be equal to factor payment। तो like this, तो जितना पैसा फैक्टर पेमेंट को जाता है, that is मतलब either that is used for buying goods and services or for saving। यहाँ पे एक डिफरेंस दिया हुआ है आपको करने के लिए स्टॉक एंड फ्लो का, जो ऑलरेडी हम लोगों ने कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। एक और डिफरेंस है यहाँ पे कैपिटल एंड नेट इन्वेस्टमेंट का। ये डिफरेंस देख लेते हैं, द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड नेट इन्वेस्टमेंट। बेसिकली कैपिटल इज रिलेटेड विद द लिक्विडिटी, वेयर एज इन्वेस्टमेंट इज रिलेटेड विद इक्विटी, net investment। Capital is a stock variable, whereas net investment is a flow variable. It continuously flows during a period of time, whereas when we calculate capital, it is calculated on a particular date। Capital is recorded on the liability side of the balance sheet, whereas investment is recorded on the asset side of the balance sheet। So like this you can explain। Question number 4, what is the difference between planned and unplanned inventory accumulation? And this is also we have discussed। And then we have write down 3 identities of calculating GDP of a country by 3 methods। This is also already explained। तो next question में चलते हैं, and यहाँ पे है like आपको definition देना है बजट डेफिसिट और ट्रेड डेफिसिट का, जो ऑलरेडी हम लोगों ने आप लोगों को मैं समझा चुका हूँ। एंड एक इसके साथ में एक न्यूमेरिकल्स भी है कि जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ओवर सेविंग्स ऑफ ए कंट्री। तो इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स का डिफरेंस आपको दिया हुआ है, दैट इज़ 2000 करोड़, एंड आपको बजट डेफिसिट दिया हुआ है -1500 करोड़। तो आपको निकालनी है कि इसकी कंट्री की ट्रेड डेफिसिट कितनी है। ओके, तो सीधे चलते हैं न्यूमेरिकल्स में। दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द न्यूमेरिकल। एंड यहाँ पे एज इन द क्वेश्चन I माइनस एस, I फॉर इन्वेस्टमेंट, S फॉर सेविंग्स। तो ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 2000 करोड़, एंड बजट डेफिसिट आपको दिया हुआ है माइनस में है बजट डेफिसिट। इसका मतलब कि गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर हैं वो रेवेन्यू से ज़्यादा है। एंड तो यहाँ पे ट्रेड डेफिसिट के लिए हम लोग क्या करेंगे, I mean जो आपका इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स का जो डिफरेंस है, दैट शुड बी एडेड टू द बजट डेफिसिट। तो जब प्लस करेंगे, बिकॉज यहाँ पे ये माइनस में है बजट डेफिसिट, तो 2000 माइनस 1500 तो 500 करोड़ आ गया। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सो एक बार वापस क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था एंड आपने क्या निकाला। जैसे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ओवर सेविंग्स आपको दिया हुआ था 2000, एंड बजट डेफिसिट अगर ये कभी कभी प्लस में देता है, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू है वो ज़्यादा होती है एक्सपेंडिचर से, लेकिन यहाँ पे माइनस में आपको दिया हुआ है। तो दैट मीन्स द गवर्नमेंट
expenditure is more than the income. So like this you can solve. Okay, next question में चलते हैं. यहाँ पे आपको दिया हुआ है सपोज द जीडीपी एट मार्केट प्राइस ऑफ ए कंट्री इज 1100 करोड़ एंड फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आपको दिया हुआ है 100 करोड़. इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज का डिफरेंस दिया हुआ है 1150 करोड़ एंड नेशनल इनकम आपको दिया हुआ है 850 करोड़. तो फाइंड द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन. ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है एंड यहाँ पे आपको दिया हुआ है जो चीज़ आपको दिया हुआ है यू कैन जॉट इट डाउन एंड ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है जो मैंने ब्लू इंक में लिखा हुआ है यहाँ पे. एनएनपी इक्वल टू जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. तो एनएनपी यहाँ पे नेट नेशनल प्रोडक्ट हो गई. यहाँ से जीडीपी इसको फाइंड आउट करना है आपको बिकॉज फाइंड आउट तो आपको डेप्रिसिएशन करना है लेकिन ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन बिकॉज ये चीज़ आपको मतलब फाइंड आउट करनी है डेप्रिसिएशन. तो आपको एनएनपी दिया हुआ है नेट नेशनल प्रोडक्ट 850 करोड़. यहाँ पे यू कैन सी हियर नेशनल इनकम, इसको हम लोग इन अदर वर्ड्स बोला जाता है एनएनपी. तो दिस इज गिवन 850 करोड़ एंड जीडीपी आपको दिया हुआ है 1100 करोड़ 1100 करोड़. इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको दिए हुए हैं 150 करोड़ एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 100 करोड़. तो ये यहाँ पे फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन. सो दिस इज 200 करोड़. सो दिस इज सो सिंपल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. यू आर गिवन नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट 1900 rupees and there are no interest payments made by the firms or the government and यहाँ पे पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम दिया हुआ है 1200 करोड़ and personal income taxes paid are 600 crores. Then the retained earnings of the firms 200 crores. Now आपको फाइंड आउट करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ट्रांसफर पेमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट एट द फर्म्स टू द हाउस होल्ड. सो यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है पीडीआई का, दैट इज़ पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम एंड दिस इज़ द फॉर्मूला जो मैंने ब्लू इंक में लिखा हुआ है, दैट इज़ एनएनपी माइनस रिटेन्ड अर्निंग्स प्लस ट्रांसफ़र पेमेंट माइनस पर्सनल टैक्स. सो ये सारे वैल्यूज़ जब हम लोग यहाँ पे प्लस माइनस करेंगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ट्रांसफ़र पेमेंट बिकॉज ये इक्वेशन बन जाएगा एंड ये आपको चीज़ निकालनी है ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं एंड यहाँ पे आपको फाइंड आउट करनी है पर्सनल इनकम एंड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम एंड आपको टेबल में ये सारी चीज़ें दी हुई है एंड एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया हुआ है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दिया हुआ है, कॉरपोरेट टैक्सेस हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड्स हैं, इंटरेस्ट पेड बाय हाउस होल्ड्स हैं, ट्रांसफ़र इनकम है, पर्सनल टैक्सेस हैं. तो नाउ ओके फ्रेंड्स, नाउ यू हैव टू यूज़ दिस फॉर्मूला. पर्सनल इनकम इज इक्वल टू एनडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट माइनस कॉरपोरेशन टैक्स माइनस इंटरेस्ट पेड बाय द हाउस होल्ड्स. ओके, सो ऑल दिस थिंग्स आर गिवन हियर. जैसे कि यहाँ पे एनडीपी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 8000 रुपीज़ करोड़ एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आपको दिया हुआ है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स दी हुई है, कॉरपोरेशन टैक्स दिया हुआ है एंड नेट इंटरेस्ट पेड बाय हाउस होल्ड दैट इज़ वो भी आपको चीज़ दी हुई है. तो जस्ट इसको प्लस माइनस करने से यू गेट द पर्सनल इनकम एंड टू फाइंड आउट पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम तो आपको पर्सनल इनकम से पर्सनल टैक्स ये सब्ट्रैक्ट करना है, यू विल गेट PDI. सो लाइक दिस. आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, यहाँ पे इन अ सिंगल डे देयर इज़ अ बार्बर हु कलेक्ट 500 फ्रॉम हेयर कट्स एंड उसकी डेप्रिसिएशन दी हुई है 50 रुपीज़ and of the remaining 450 rupees Raju paid taxes, I mean sales taxes of 30 rupees and takes home 200 and retains 220 for improvement and buying new equipments, and he further pays rupees 20 as income tax and based on this you have to find GDP. So
ये भी बहुत सिंपल है। जीडीपी यहाँ पे उसकी 500 ही है जो टोटल उसने कलेक्ट किया फ्रॉम हेयर कट। व्हेन वी कैलकुलेट एनएनपी एट मार्केट प्राइस, सो दैट इज अगेन सिंपल, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, तो यू विल गेट एनएनपी। नाउ एनएनपी आपको यहाँ पे एट फैक्टर कॉस्ट भी फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस टैक्स, सेल्स टैक्स, सो यू विल गेट दिस नेट फैक्टर इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। हमेशा ध्यान में रखना है, फैक्टर कॉस्ट जब फाइंड आउट करेंगे तो टैक्सेस को सबट्रैक्ट करना है। एंड यहाँ पे पर्सनल इनकम अगेन एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट माइनस रिटेन्ड अर्निंग्स। तो यहाँ पे 420 जो प्रीवियस सॉल्यूशन में आया है माइनस 220, सो यू गेट 200 रुपीज़। एंड टू कैलकुलेट पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, तो यहाँ पे पर्सनल इनकम माइनस इनकम टैक्स, सो यू गेट 180 रुपीज़। सो दिस इज द नेट इनकम ऑफ द बार्बर। सो गुड क्वेश्चन, नाइस वन। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ नॉमिनल जीडीपी ऑफ एन इकोनॉमी 2500 करोड़ एंड वैल्यू ऑफ जीएनपी ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग द सेम ईयर इज 3000 करोड़। नाउ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जीएनपी डिफ्लेटर। तो जीएनपी डिफ्लेटर का ये फॉर्मूला जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था ड्यूरिंग द नोट्स एक्सप्लेनेशन, दैट नॉमिनल जीएनपी माइनस रियल जीएनपी। सो यहाँ पे नॉमिनल जीएनपी 2500 है एंड रियल जीडीपी आई मीन जीएनपी यहाँ पे दिया हुआ है, तो 3000 इंटू 100, सो यू गेट 83.33%। एंड एक क्वेश्चन यहाँ पे और भी निकालना है, दैट इज़ राइज इन द प्राइस लेवल। तो उसके लिए आप आई मीन दिस जीडीपी डिफ्लेटर जो परसेंटेज आया है उसको 100 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सो यू गेट 16.67%। सो दिस इज द राइज इन द प्राइस लेवल as compared to the base year. So my dear friends, these are all few questions of national income along with numericals, and do practice this well for the exam, and I hope this video will help you in your preparation and you will be able to score good marks. Thank you very much for watching this video.